حضور سجدے میں ہے، حضور کا ہاتھ اٹھا سورج کھینچنے کے لیے، سورج تڑپ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوگا، پوچھتا ہے مولا اب بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر تیرا سجدہ ہے، ادھر مصطفیٰ نے بلایا ہے، کیا حکم ہے؟ رب نے کہا سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ارے سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا؟ علی نے میرے مصطفیٰ کے ادب نے نماز چھوڑ دی، سجدہ ہر شام ہوتا رہے گا، کیا مصطفیٰ کے بلاوے پر لبیک؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرحبا 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 مرحبا۔ لوگو، ایمان کی حقیقت عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے، اور یہ حقیقت یہ میلاد کا پیغام ہے۔ میلاد لوگوں سنو، میں تحقیق اور ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اس لیے منایا جاتا ہے کہ دلوں میں مصطفیٰ کا عشق اور ادب پیدا ہو، عظمت اور تکریم پیدا ہو۔ اگر عظمت نہیں تو کوئی عمل قبول نہ ہوگا، کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ سن لو میری بات، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے، ایمان کی قبولیت کی شرط عمل نہیں ہے۔ ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، ایمان عمل سے پہلے بلا شرط قبول ہو جاتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ عمل نہ ہو ایمان تب بھی قبول، اور اگر ایمان نہ ہو تو عمل نامقبول۔ تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کی شرط سے قبول ہوگا۔ اب دیکھنا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان نہ علم کا نام ہے نہ عمل کا نام ہے، ایمان خدا کی قسم، خدا کے حبیب کی محبت و ادب کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ جب تعظیم نبوت آدم کا وقت آیا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، ابلیس اپنے علم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، انا خیر منہ، علم کی دلیل دی تھی، علم ابلیس کو لے ڈوبا، علم نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، علم ابلیس کا ایمان بچا، بولیے ابلیس کا ایمان بچا، بھائی بولو، نہیں سکا۔ وہ جو علم کے ساتھ تھا برباد ہو گیا۔ ادھر پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے علم کے چراغ کو بجھا دیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا علم لنا، مولا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ابلیس علم پر کھڑا ہوا، برباد ہو گیا۔ شیطانوں نے فرشتوں نے علم چھوڑ دیا، ادب اپنا لیا، علم چھوڑ دیا، ادب اپنا دیا، فرشتوں کو ادب نے مقرب بنا دیا، شیطان کو علم نے مردود بنا دیا۔ لوگوں، ایمان علم سے نہیں آتا، ایمان ادب سے، محبت سے، جھک جانے سے آتا ہے۔ پوچھو امام بخاری سے، مینا کا میدان ہے، حجت الوداع کے بعد عرفات سے مصطفیٰ مینا پہنچے، خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ صحیح بخاری میں خطبہ مینا کے الفاظ، دوران خطبہ آقا علیہ السلام ایک وقت آیا اور آپ فرمانے لگے، صحابہ کرام کے 1.25 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہے، فرمانے لگے صحابہ سے ایو یوم ھذا، بولو آج کون سا دن ہے؟ کس کو معلوم نہیں کہ یوم نحر ہے، قربانی دے رہے تھے، جانور ذبح کر رہے تھے۔
मीना में खड़े थे, सबको पता था मीना में कुर्बानी का दिन है, मगर हाथ जोड़ दिए सहाबा ने, 1.25 लाख सहाबा। कहने लगे हुजूर मालूम नहीं, आप ही जाने, अल्लाह व रसूलुहु आलम। आपने फरमाया अय्यो शहरिन हादा व कालू अल्लाह व रसूलुहु आलम। पूछा आज कौन सा महीना है? सहाबा को पता था हज का महीना है, हज कर रहे हैं, एहराम बांधे हुए। कौन सा महीना हुजूर ने पूछा। सहाबा कहने लगे आका मालूम नहीं, आप ही बेहतर जाने कौन सा महीना। फिर मेरे मुस्तफा ने पूछा अय्यो बलदिन हाजा, मक्का की तरफ इशारा करके पूछा अय्यो बलदिन, ये कौन सा शहर है। किसको मालूम नहीं था कि शहर मक्का है, सामने काबा है। सहाबा कहने लगे अल्लाह व रसूल आलम, हुजूर मालूम नहीं, आप ही बेहतर जानते हैं। किसी ने पूछा ताबईन ने सहाबा से कि आपको सब कुछ मालूम था, बताया क्यों नहीं। सहाबा ने पूछा तुम्हें मालूम था कुर्बानी का दिन है, हज का महीना है, मक्का का शहर है, जवाब क्यों नहीं दिया। कुर्बान जाओ। अरे सहाबा आपके ईमान पर, उन्होंने ईमान की हकीकत को जान लिया था कि हकीकत ईमान अदब मोहम्मद है। उन्होंने पूछा क्यों नहीं जवाब दिया। सहाबा कहने लगे इसलिए जवाब नहीं दिया कि मालूम नहीं मंशा यार क्या थी, मालूम नहीं मंशा यार क्या थी। वो कहते हैं खुदा की कसम, हम अगर कहते हज का महीना, मुस्तफा कह देते नहीं मुहर्रम का महीना, उस दिन से महीना बदल जाता। हम कह देते मक्का है और यार फरमा देता नहीं मदीना है, खुदा की कसम मक्का शहर का नाम बदल जाता। लोगों जिन्हें ईमान की हकीकत मालूम थी, उनके अदब का आलम यह था, अपनी अकलों के चिराग बुझा दो इश्क अदब मुस्तफा के सामने, ख्वाहिशों के चिराग बुझा दो इश्क अदब मुस्तफा के सामने। उम्मत जलील हो रही है, हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उठने और फिर से जी उठने का कोई रास्ता नहीं रहा। बता दो और कोई राह न होगी। अगर फिर अपनी इज्जतों की बहाली चाहते हो तो वो तराने इश्क मुस्तफा के फिर गाओ जो बिलाल हबशी गाया करते थे। वैसे करने वाले इश्क मुस्तफा की तपश पैदा करो, अपने सीनों में इश्क मुस्तफा की तपश अंगारी दामड़ बचा लो। तुम्हारी आंखें हुजूर की मोहब्बत में पुरनम रहे, तुम्हारे दिल इश्क मुस्तफा में तड़पते रहे, तुम्हारी रूहें हुजूर के दर के साथ जुड़ी रहे, और हुजूर की हाजिरी और हुजूर की हुजूरी का सोचा करो। अरे निस्बत मोहम्मदी में फना हो जाओ। इसी निस्बत मोहम्मदी में फना हो जाने का नाम बका है। हुजूर के अदब में फना हो जाने का नाम ईमान है, और हुजूर के अमल में फना हो जाने का नाम इस्लाम है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की यही दावत है। उठो इश्क अदब मुस्तफा की दावत लेकर, निस्बत मुस्तफा की दावत लेकर दुनिया पे छा जाओ। सब निस्बतें ठुकरा दो। सैयदना सिद्दीक अकबर के उस फरमान की तरह जिनको एक दिन उनके बेटे ने बताया। बेटे ने जब वो सहाबी थे, अर्ज किया अब्बा जान आपको उस दिन का एक वाकया सुनाता हूं जब मैं काफिर था और आपके खिलाफ मैदान बद्र में मक्का की कुफ्र की फौज की तरफ से लड़ रहा था, वो सुनाऊं। बेटे ने कहा अब्बा जान मैदान बद्र में 3 मरतबा आपकी गर्दन मेरी तलवार की जद में आई थी, अगर चाहता तो सर कलम कर देता, मगर मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर जलाल में आ गए। कहा बेटे तूने तो 3 मरतबा
बाप समझ के छोड़ दिया। उस खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, तुम्हारी गर्दन अगर अबू बकर की तलवार की जद में एक बार आती, खुदा की कसम सर कलम कर देता, बेटा समझ के कभी ना छोड़ता। इसलिए कि जब से मोहम्मद वाला सौदा किया है, सारे सौदे छोड़ दिए। जब से बाजार मोहम्मद में बिके हैं, सारे सौदे भूल गए हैं। जब से निस्बत मोहम्मदी के गुलाम हुए हैं, सब निस्बतें छोड़ दी हैं। और जब से हुजूर से वफादारी का ऐलान कर दिया है, सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। आओ उठो, रिश्ते मुस्तफा को हर रिश्ते पर गालिब कर लो, निस्बते मुस्तफा को हर निस्बत पर गालिब कर लो, गुलामी मुस्तफा को अपना लो और सारी गुलामियों के बुतों को ठोकर मारकर तोड़ दो। मैं खत्म कर रहा हूं इस ऐलान पर कि ये तारीख उम्मत मुस्लिमा में इंशाअल्लाह इस्लाम का एहया करके रहेगी, दीन की तजदीद करके रहेगी। लोगों सुन लो, मैं इसलिए पैदा किया गया हूं, इसलिए जिंदा हूं और इसलिए मर जाऊंगा कि अपने मुस्तफा का इश्क एक एक सीने में चराग जला दूं। अंधेरे इश्क मुस्तफा से खत्म कर दूं। उठो, इश्क मुस्तफा की शमे लेकर, अदब मुस्तफा की शमे लेकर जिंदगियों में इनकलाब लाओ। दीन की तजदीद होगी। ये सदी तुम्हारी सदी है। तुमने इश्क और अदब के मुस्तफा के जरिए, इल्म और मारिफत मुस्तफा के जरिए इस्लाम को एहया करना है, तजदीद दीन करनी है। ये पैगाम अगली सदी की नस्लों तक मुंतकिल करना है। ये इनकलाब 2 साल, 4, 10 साल, 20 साल की जिद्दोजहद से इबारत नहीं है। ये इनकलाब सदियों तक मीरास अगली नस्लों को मुंतकिल करता जाएगा। बुनियाद रखी है, इस बुनियाद पर दीवारें कायम की हैं। बढ़ते जाओ, बस हिम्मत न होना, मायूस न होना। फतह, नुसरत उतरेगी, तुम्हारे कदमों में आएगी अगर तुम हमा वक्त मुस्तफा के कदमों में रहोगे। मुस्तफा के कदम